Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram. How to make notes for current affairs, for CLAT or any other law entrance exam. If you want to make notes from newspaper for current affairs, then this video is really going to help you out because we're going to talk about the common mistakes that students commit, and we're also going to talk about the confusion that you have about various things in this video. I'm going to give you a step-by-step guide that how you can prepare notes. Right, chaliye, let's get into this video quick. Is it necessary to make notes? A lot of you have this question that is it necessary to make notes? I've done a detailed video discussing that should you make notes from newspaper for CLAT or any other law entrance exam. Do watch that video, and also do watch this video also, because making notes is a skill that is not only required for making full-fledged notes from the newspaper, it is also required to make short notes. And if you watch this video, it is going to help you in making short notes also. So let's get into this video quickly. Choose wisely. Now there's certain things that you need to decide right now. There are certain things that you need to decide right now. Number one is that you will be making your notes on loose sheets and putting them in folders, or you will be using registers. Now if you use A4 sheets, you can bring a rim of A4 sheets and keep on using them. And what you can do is that you make either date-wise notes or topic-wise notes. And if you're making date-wise notes, then you'll be collectively putting your every month's notes together in a folder. So you have your January ka notes, February ka notes, March ka notes, April, May, right? That kind of situation. And for register also you can do like that you make date-wise notes, or you have separate registers for separate news. Like you can divide, if it's topic wise, it can be national news, international news, national news, international news. Then you have your sports, business news, economics, like economy related news or business news can be put together. Then you have your legal news, right? Then you have your sports kind of situation, right? It completely depends on you. Now one of the mistakes that students commit, candidates try to copy as it is done in various current affairs magazine. Now you need to remember one thing, कि उन लोगों का काम ही ये है, it is their job to publish a current affairs magazine. It is their job. Well, your job is to clear CLAT, and it is not just to make notes. You have other tasks also in your life. So yeah, you have to give time to reading newspaper and to make notes, but you cannot copy them, right? So don't get into those kinds of divisions, because you cannot really do that. You cannot really achieve that. Now the pros and cons of using loose sheet. Yeah, loose sheet, one benefit is that you can just carry them anywhere, number one. Number two, if you have to add some additional information about any topic and you've already done a detailed research about that, you can just put in some more sheets and that is done, right? Registers, they're easy to handle. You can just name the registers and keep on bringing in new registers when they get over. So both of them do the job. Vocabulary and research. Now one of the tip that I want to give you out here is that obviously even I tell you that you should cover your vocabulary from the newspaper, because it is the common words that get covered. ठीक है ना, जो common words newspaper में use होते हैं वही vocabulary के form में mostly आपके exams में पूछे जाते हैं, तो इसलिए vocabulary cover करो. But don't write down the words in your notes itself. Instead, have a separate register or separate sheet for noting down those words of which you do not know the meaning, and after reading the complete newspaper, after making the notes, check the meaning, right? Similarly for research. Now what is research? For example, you read about XYZ topic, right? And you want to know the details, more details about it. Research is nothing but you want to know more details, or maybe you want to conduct a background study. Something is has been said and you want to know about कि यार ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका सीन क्या है वाला सीन देखना है तुम्हें, right? So that is what is background research. We're going to talk more about background research, but all these things I am going to suggest that while reading newspaper, don't bring these things in between. Instead, complete the newspaper, and after that, if you have time, then do that,
right? The next thing is having a hard copy of previous year question papers of CLAT. Now the kind of questions, or the types of questions that are asked in CLAT, you should know, right? क्या पूछा जाता है, कैसे से क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, नहीं एक्चुअल में क्लास में कैसा क्वेश्चन आता है, वो स्टडी करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. इवन इफ़ यू हैव जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू हैव टू डेवलप एन इंस्टिंक्ट विद इन यू. आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए. यू शुड हैव अ वॉइस, इनर वॉइस टेलिंग यू दैट डूड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीड दिस, मेक अ नोट ऑफ इट. How will you create that intuition? How will you create that voice? By analyzing the previous year question papers, right? These kind of questions are asked. Now let's see step by step that what you need to do step by step. Now number one step is read the newspaper completely and mark before you make notes. Now read the news completely. For example, there's this one article that you are reading, read it completely and then make notes. I'm not saying that you should read the entire newspaper and then make notes. I usually, what I do when I read one article, I find what is important and then I'm note it down and then I move to next, because when I have to note down the entire important news together, like after reading the newspaper, I find it so tiring because I think that I have to write down so much, so I do it simultaneously. It is on you how you want to do. I used to do like this only, right? Read the news completely, mark before you make notes. Now why I'm saying mark before you make notes, because अगर आपने पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो किस बारे में है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो पूरा पढ़कर जो मार्क किया है उसमें से फिर नोट्स बनाओ, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. राइट द हेडिंग इन योर ओन वर्ड्स. नाउ most of the times you'll see that the heading is a catchy heading. Now the newspaper people, they are writing the newspaper, they are publishing the newspaper and they want you to read the newspaper, they want you to spend time on newspaper, right? So they write catchy headlines, right? So you don't need those catchy headlines, you need information. Our aim is to collect information, right? So we need information. So do not copy the headlines. Instead, try to read the entire article and make a headline of your own which consists of important information, right? Or it can be just like, for example, again talking about Quad Summit, you can just write Quad Summit and the information that is there, right? Let's see this article. That is why I was talking so much about Quad Summit. So this is the entire article and it says a giant leap forward for the Quad, right? This is a catchy headline, right? Information क्या है, क्या पता चलता है हमें, that it is about the Quad Summit. Now not even about the Quad Summit, when we go forward and read, then we get to know that okay, quadrilateral security dialogue is the thing, right? यहाँ पे तो हमें Quad Summit के बारे में भी नहीं पता चलता, right? So when you read the entire article, then you get to know okay, Quad Summit took place, these are the persons who participated, these are the countries, right? So after reading everything, not only note down the heading in your own words, right? For example, here if I would have to write in my notes, I would simply write Quad Summit and then I would just do like this. Or if I want to write a bigger one, I would like to note down the name of the country. 3 is note down the important news in pointer format. Do not write complete sentences. You do not need to write complete sentences, right? Grammatical mistakes, it's okay, it's fine. Number one, you note down the headline, ठीक है, which is not a copied headline. You just, whatever is important, you just write down that. For example, here you can say India's arms imports down by 33%. This you can even copy if you want to, right? But the previous one that you saw, it was a catchy headline which was not at all informative, right? Here you can even write India's arms import down by 33%, and you can write down the name of the institute which has conducted this research, like Swedish think tank Stockholm International Peace Research Institute has conducted the research. And you can, abbreviations are also important, right? You can note it down. And then they have told that Saudi Arabia is India's second and the first one is Saudi Arabia. Again, important because this can be asked that okay, which is a country which is the first one, right? And then they have also given the reasons. Now here the second paragraph, the overall drop in arms imports between 2011-15 and 2016-20 seems to be mainly due to its complex and lengthy procurement. For example, reason लिखना है, so I won't write the complete thing. Reason I write complex and lengthy procurement, right? So short में लिखना है, procurement process लिखना है, ठीक है?
उसके बाद then I combined with its attempt to reduce dependency on Russian arms by diversifying its network of arms suppliers, the report said. Now the next one reason is that India wants to reduce its dependency on whom? On Russia. Right, so that is one reason they want to increase their network and they are reducing their dependency on Russia. So you don't need to, now from this entire paragraph, it is not that you start copying the entire paragraph. Are you trying to understand what I'm trying to say? Just pick up the important things that you need to know and write it down. Now when you sit down to make notes on the day, on first day, don't think that you will have the best notes. It is with time that you will develop the habit, and then after like 2 to 3 months or even 2 months, you'll see a drastic change. Right? So notes making itself is such a thing that the more and more notes you make, the better you get at it. Right? So that is why start making notes from now itself, so that with time you improve. And if you start making notes, obviously it's going to help you in learning, it will help you in revising. So yeah, this is what you need to do. One major mistake that we commit is we copy everything. No, you don't really need to copy everything. You just need to call out the important news, right? And people, don't worry if you think that you do not know how to call out the important news. You have your current affair magazines for you to help that, to call out the important news. But promise me you're going to read the newspaper even if you're not making notes. अब स्टेप 4 देखिए, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ. हमारा स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज टू रीड द आर्टिकल. ठीक है ना, रीड द आर्टिकल एंड मार्क व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. राइट, उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या है? व्हाट इज स्टेप 2? इज टू नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. एंड हमारा नॉट टू डू क्या है इसमें? नॉट टू डू इज कि हमने कॉपी नहीं करना है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी करना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है. राइट, उसके बाद हमारा स्टेप 3 हेडलाइन, और मैंने वो समझाया था. अब मैंने एक चीज जो आपको ये बतानी है, योर हेडलाइन शुड बी इन डिफरेंट कलर. ठीक है, एंड पॉइंटर्स शुड बी इन, पॉइंटर्स जो हैं दे शुड बी इन different colors, so that that way it is easier to learn. Right, now the next thing that you need to do is background study or research. Now background study or research क्या होता है? For example, I studied about Quad Summit and I do not know much about Quad Summit, but I want to know कि अच्छा क्या है, क्या ये कब फॉर्म इस्टेब्लिश कब हुआ, इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज हैं. बिकॉज ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि अगर कोई समिट हो रही है तो उसमें ये पूछा जाता है कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया ने कब ज्वाइन. मैंने ऐसे से क्वाड समिट के नोट्स बना लिए, तो मुझे पता चला इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप का पार्ट है. ठीक है ना. क्वाड समिट क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्वाड्रिलेटरल फॉर्मुलेट होता है. यूएसए यहाँ पर है, जापान यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है. ठीक है, मैंने ये नोट कर लिया. उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका नाम भी चेंज हुआ है, पहले इसका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था नाम, अब इसका जो है क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क ही रह गया है. ठीक है ना, तो वो सारा मैंने नोट कर लिया. क्या बात हुई उसके अंदर थोड़ी बहुत मैंने वो भी नोट कर ली. तो ये मैंने रिसर्च किया. ये न्यूज़पेपर में नहीं दिया हुआ था, बट ये मैंने खुद ही ऑनलाइन जाके रिसर्च कर लिया. सबसे पहले तो एक जो बात नोट कर लो, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त रिसर्च में मत घुस जाना, बिकॉज वो बहुत ही मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता है. न्यूज़पेपर पढ़कर खत्म कर लो, अपने रफ पेज पे लिख लो कि ठीक है मुझे इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है, जब टाइम मिले रिसर्च कर लो. रिसर्च करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज यूपीएससी की जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी यूपीएससी की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको सारा ही डिटेल में मिल जाता है. जैसे ही कोई टॉपिक न्यूज़ में इंपॉर्टेंट आता है, वैसे ही ये लोग आर्टिकल्स लिख देते हैं सारे, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट इज आप मंथली पीरियोडिकल में से भी कवर कर सकते हो, जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है. ठीक है, उसमें भी अच्छे से रिसर्च करी होती है, सब कुछ बताया होता है. राइट, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप IAS विजन खोलकर देखोगे, PDF खोलकर देखोगे, उनका मंथली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. बट अगर आप ये एक्सरसाइज हर मंथ हर डे करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा. ठीक है ना. अगर आप कहो मेरे को जनवरी 2022 में जाके कि मुझे करंट अफेयर अच्छे से कवर करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. थोड़ा क्या, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एनुअल ईयर बुक पढ़ोगे आप, उसमें से कवर होगा. बट यहाँ पे आप देख रहे हो आप कितने अच्छे से, बड़े आराम से हर रोज अगर 1 आवर भी आप देते हो न्यूज़पेपर को, तो आप बड़े आराम से न्यूज़ कवर कर सकते हो. तो बैकग्राउंड रिसर्च डरना नहीं है. बैकग्राउंड रिसर्च अगर नहीं भी होती है तो हमारी करंट अफेयर मैगजीन्स है बैकग्राउंड रिसर्च के लिए. अब मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको बैकग्राउंड रिसर्च की.
अपने नोट्स में से, इंडिया एंड फिलीपींस साइन एन एग्रीमेंट कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस, राइट। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सैंक्शंस लगेंगे। तो सैंक्शन कौन सा है? CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है, एम्स टू सैंक्शन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज हु एंगेज इन अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद अ लिस्टेड एंटिटी। तो उसके अंदर लिस्टेड है टर्की एंड चाइना पीनलाइज्ड। अब इसमें टर्की एंड चाइना वो पीनलाइज्ड फॉर परचेजिंग S-400 ट्राइम्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। तो उसके अंदर जो कंट्रीज लिस्टेड हैं उस सैंक्शन के अंदर, तो वो वाली कंट्री से अगर आप डील करते हो तो आपको मतलब पैसे देने पड़ते हैं, आपको फाइन भरना पड़ता है, पेनलाइज होते हो आप, ठीक है ना। पीनलाइज्ड हुए थे और टर्की और चाइना रिसेंटली हुए थे। और अब इंडिया और फिलीपींस के अंदर बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का, ब्रह्मोस के अंदर जो कुछ ऐसे जो चीज़ें लगी हुई हैं वो जो है वो हम रशिया से लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ गया। अब मुझे न्यूज़पेपर में सिर्फ CAATSA मेंशन था, मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब मुझे जानना था कि ये क्या है, तो मैंने वो सारा पढ़ लिया और नोट कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। तो आपको न्यूज़, ये तो बड़ा बेसिक होता है कि हमें पता चल जाता है कि यार मुझे ये जानना चाहिए तो मैं जान लूँ, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरा रिसर्च मिस हो गया, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में रिसर्च करना था, कोई बात नहीं, हमारे पास मैगजीन्स हैं। तो जितना हमसे रिसर्च होता है हम उतना करेंगे, हम डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, बाकी हम अपनी मंथली मैगजीन पर यकीन रखेंगे, ठीक है। नाउ whenever you have time research about them, हाँ ठीक है, अपने सेपरेट पेज पे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे क्या था, क्वाड समिट लिख लिया कि ठीक है मुझे इसके बारे में रिसर्च करना है, फिर मैंने लिख लिया CAATSA ये क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च कर लिया, सिंपल एज दैट। अब हाउ टू लर्न जीके। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं दी हमसे करंट अफेयर्स याद नहीं होते। बिकॉज हमें करंट अफेयर्स हमसे इसलिए याद नहीं होते बिकॉज हम क्या करते हैं, हम किसी और के नोट्स, हम डायरेक्टली करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाकर याद करने लग जाते हैं कि हमें समझ में आ जाए। देखो जब तक हमें हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो हमें करंट अफेयर्स का कैसे पता चलेगा। अगर मैं कहूँ कि सीधा 12th का मैथ सॉल्व करने लग जाओ, सीधा इंटीग्रेशन पे आ जाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करने लग जाओ, हो जाएगा। यही हम करंट अफेयर्स के साथ कर रहे हैं। हम बेसिक पे तो जा ही नहीं रहे, हम उसके सोर्स से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे को इतने लोग बोलते हैं कि हमें कोई और सोर्स बता दो, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, हम द हिंदू नहीं पढ़ सकते। देखो यार मैंने 2 वीडियोस करी हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल बताया कि कैसे तुम न्यूज़पेपर ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अभी रिसेंटली भी वीडियो करी, उसके अंदर तो मैं बड़े अच्छे से समझाया कि बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लैट 2022 के लिए, क्लैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ये वीडियो तुम देख रहे हो, तो तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। एग्जाम्पल ए डे है आज, ठीक है ना, ए डे को मैंने ए डे का उठाकर न्यूज़पेपर पढ़ा, नोट्स बनाने हैं तो बनाए, बट मैंने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो पढ़ ली एंड उसके बाद हो गया, ठीक है। नोट्स बनाने थे तो मैंने नोट्स भी बना लिए, अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो इट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने जीके टुडे या फिर IAS विजन या कोई भी मैगजीन जो मंथली मैगजीन है उसको उठाया और उसमें उसको उठाकर मार्क किया इंपॉर्टेंट न्यूज़। बट मुझे समझ में आई क्योंकि मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो वो जो न्यूज़ मैंने अपने मंथली मैगजीन में पढ़ी वो मेरे लिए नई नहीं है। अगर वहाँ पे क्वाड समिट के बारे में बोला हुआ है, अगर वहाँ पे कहा हुआ है कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, तो मुझे उसके बारे में पता है, तो मेरे को वो नई न्यूज़ नहीं लग रही है। मेरे को फिलीपींस भी याद हो गया, मुझे इंडिया भी याद होगा, कहीं ना कहीं मुझे ब्रह्मोस के बारे में भी कुछ ना कुछ पता है, कहीं ना कहीं मुझे पता है, ठीक है ना। कहाँ तो आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम क्वाड समिट के बारे में, और वो भी इतनी सारी 15 डेज के या 1 मंथ की कंप्लीट न्यूज़ एक साथ, ये भी बहुत मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, 80 to 90 पेजेस के ये होते हैं, ठीक है ना। कहाँ तो आप 80 to 90 पेजेस इकट्ठे पढ़ रहे हो और कहाँ आपने धीरे 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 सारे मंथ का पढ़ा एंड फिर जाके आपने वहाँ पढ़ा। डिफरेंस ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको याद नहीं होता। रिविजन स्केड्यूल, रिवाइज क्यों नहीं करते हो वीक डेज में। फॉर एग्जांपल आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना, नोट्स बना रहे हो आप, तो नोट्स बना रहे हो तो उसको वीकेंड्स पे रिवाइज करना ही करना है, वीकेंड पे रिवाइज करना है, वीकेंड्स पे आप रिवाइज करोगे, ठीक है। और मार्क नोट्स विद अ हाइलाइटर, जो नोट्स बनाए हुए हैं, चाहे तो आपके नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं,
चाहे आप अपनी जो मैगजीन है उसी को एज नोट्स ट्रीट कर रहे हो, वहाँ पे आपने मार्क करना है, हाइलाइटर यूज़ करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वहीं पे, सो दैट अगर क्विक रिविजन करनी है तो आप क्विकली वो रिविजन कर पाओ, राइट। रिवाइज द इंटायर मंथ नोट्स प्लस प्रीवियस मंथ नोट्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है ना। अब जैसे मार्च एंड हो जाएगा तो तुम्हें जैन और फेब की न्यूज़ रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास मार्च के नोट्स हैं तो मार्च की भी तुम रिवाइज करोगे सारा, ठीक है। अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और बहुत इजीली याद होगा। इन बिटवीन योर स्केड्यूल इंक्लूड रिविजन ऑफ नोट्स फॉर डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आज हॉलीडे है, ठीक है ना, तो तुम कहोगे ओके फाइन, आज मैं फरवरी के नोट्स फटाफट से रिवाइज कर लेती हूँ। ऐसे तुम्हें रिविजन स्केड्यूल्स अपने बनाने हैं। मेक योर ओन कोड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ अगेन क्वाड समिट का ही एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके अंदर, मैंने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया और यूएस आर पार्ट ऑफ दिस समिट, राइट। तो मैंने क्या किया, जय अस, हमें जय के अंदर जे मैंने कहा कि ये जापान है, ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, आई से इंडिया है और यूएस से तो यूएस है ही। तो ये क्वाड समिट का हो गया, राइट। और क्वाड्रिलेटरल और ये सारा, तो ऐसे से कोड्स बनाओ, ठीक है ना, इमेजेस बनाओ, ठीक है, कि क्या है उसको समझो वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल, अब मेरे दिमाग में रहेगा कि ये क्वाड क्यों है, क्योंकि ऐसा सा बन रहा है, ठीक है ना। इंडिया यहाँ पे हो गया, यूएस यहाँ पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो गया, जापान यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मैंने वो माइंड मैपिंग भी करो साथ साथ अपने नोट्स के अंदर। इंक्लूड शॉर्ट नोट्स ऑन द साइड ऑफ योर नोट्स फॉर क्विक रिविजन। जब नोट्स बना रहे हो थोड़ी सी, जैसे ये तुम्हारा पेपर है, यहाँ पे साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो सो दैट यहाँ पे तुम क्विक रिविजन वाले नोट्स बना सको। राइट एंड लर्न, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा उसको राइट करो एंड देन ट्राई टू लर्न। डिस्कस विद समवन, दिस इज द बेस्ट। अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई फ्रेंड है जो न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, उनके साथ डिस्कस करो न्यूज़, तो उससे तो और भी अच्छे से आपकी न्यूज़ कवर होती है। Frequently asked questions देख लेते हैं। When is the right time to begin? Right now, when you're watching the video, this is the right time to begin. If you start reading newspaper now, the best part about newspaper is that when you read newspaper, it not only covers the news of today and yesterday, it also covers the news of so many yesterdays, ठीक है ना। एडिटोरियल्स में बार बार उस चीज़ के बारे में बात होती है, तो बहुत अच्छे से आपकी न्यूज़ कवर होती है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 and you have not started reading newspaper, read newspaper. You are preparing for 2022, so read newspaper. 2023, read newspaper. That is the key. Reading newspaper is important, right? The next, how to find out what is important. Very good question. How to find out what is important? To find out what is important, it is necessary, it is very important that you pick up your previous year question papers, you analyze them, and from the magazines. अगर तुम monthly magazines पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस टाइप की न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस टाइप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनसे दूर रहना है। अब ये वाली न्यूज़ तो छोड़ ही दो बिल्कुल, पॉलिटिक्स वाली, कौन सी पार्टी में क्या हो रहा है, कौन सा कुछ हो रहा है, ये वाली न्यूज़ क्रॉस आउट है, ठीक है ना। कोई सर्वे हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, कोई डील हुई है वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया की किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरी कंट्री के रिलेशंस में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कोई नया लॉ आया है, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की कोई गाइडलाइन आई है उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ोगे, बार बार उनको पढ़ो, जीके सेक्शन पढ़ो कि अच्छा ठीक है यार ऐसा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। मैगजीन के अंदर अगेन वहां से पता चलेगा। सो अगर तुम अभी स्टार्ट कर दोगे, जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना तुम्हारा फायदा। अब कॉमन मिस्टेक्स, बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर फॉर 2 to 4 hours। भाई इतनी टाइम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर विद नोट्स आपको 1 hour 45 मिनट्स ही लगते हैं कभी कभी, तो बहुत रिपीटेड न्यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड न्यूज़ कि ठीक है ये हो गया तो तुम्हें पता, अच्छा ठीक है इसके बारे में मुझे पता है, मुझे सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट ये नोट करना है और आगे चलो, राइट। सो 45 मिनट्स to 1 hour, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 hours, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 4 घंटे नहीं देने हैं भाई न्यूज़पेपर को, माना इंपॉर्टेंट है बट ये भी नहीं है। रीडिंग न्यूज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और सेंसेशनल न्यूज़, अब न्यूज़पेपर को पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है बट इवेंचुअली कम होता रहेगा, राइट। रीडिंग न्यूज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और सेंसेशनल न्यूज़, हाँ सेंसेशनल न्यूज़, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किडनैपिंग, रेप,
ये सेंसेशनल न्यूज़ है और इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, बट ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस नाउ, यू माइट हैव दैट ओके टेल अस दी, हमें नोट्स के बारे में आपने इतना बता दिया, हमें ये बताओ कि क्या चीज़ें हैं जो इसेंशियल है जिसके बिना नहीं चलेगा। देखो यार, सबसे पहले मुझे पता नहीं मैं कितनी बार ये बोल चुकी हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे इज द की। इट इज़ essential. You're preparing for CLAT 2022 or CLAT 2023. You got to read the newspaper. Very, very, very important. Right? Watch the videos wherein I've discussed the importance in detail. Analyzing previous year question papers. ये video देखने के बाद please analyze a previous year question paper to know what kind of news is asked. ठीक है ना? आप देखोगे कि CLAT 2020 के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी जो डेप्थ में थी, कितनी डेप्थ में थी, कैसे से क्वेश्चंस आए, हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमें पता होगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इवेंचुअली हम उनके लिए प्रिपेयर कर लेंगे, राइट? मेकिंग नोट्स, नाउ दिस इज़ वेरी मच ऑप्शनल, नॉट रिक्वायर्ड। अगर नहीं हो रहा है मत करो, अगर कर सकते हो तो करो, तुम्हारे ऊपर है, राइट? नेक्स्ट इज रीडिंग 1 मंथली करंट अफेयर मैगजीन। तो हम क्या करें, न्यूज़पेपर हर रोज उठकर पढ़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम आज या कल में एनालाइज कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद रीड 1 करंट अफेयर मैगजीन एनी, ये तो मैं सुजेस्ट कर रही हूँ, कोई भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ सकते हैं, राइट? जीके टुडे की मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि वो 15 डेज का PDF बनाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, पेड है वो, IAS विजन फ्री में भी देता है अपने PDFs, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपने कैसे क्या करना है, ठीक है ना, राइट? प्लीज़ वॉच द वीडियो वेरिन आई हैव टॉक्ड अबाउट कि नोट्स बनाने ज़रूरी हैं या नहीं है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि और क्या ऑप्शंस हैं करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, एंड आप चाहो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में। अगर यू नो पूछोगे कुछ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। या दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।